Hello, how are you all doing? Hopefully, all of you are doing great. You all are fine. You are enjoying your life and studying. So, today we meet again here to discuss about a new thing in coordinate geometry. And hopefully, all of you have watched my previous lectures, which was about distance formula. So, today we will study about a new thing that is called as section formula. We will study about section formula. It's a very easy thing, very easy formulas. Most of you would be knowing this, and many of you would be also be not knowing this. So, what today we'll do is we'll try to see how this formula is derived. We'll obviously solve more in like many questions also, but we'll first try to look how this formula came, how this formula was derived. Because what happens is, if you get a direct question, obviously you can apply a formula. But suppose a question is bit twisted or molded, so you should have a fair idea about how did the proof or how did the formula come. So that would help you in solving the question and to get like your understanding about the subject or about the concept would be stronger. जितना ज़्यादा आप proofs को समझोगे उतने अच्छे से आप उसका application कर पाओगे ना. बेसिक जितना स्ट्रांग आप करते जाओगे, फॉर्मूला रट के तो ऑब्वियसली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एक होगा एक नहीं होगा, बट अगर आप कंसेप्ट समझ लोगे, कंसेप्ट सो आई प्रॉमिस यू लाइक 99% क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे. अबे कोई एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें कुछ अनोखा ही हो रहा होगा, तो तो हो सकता है कि वो नॉट सॉल्व हो. बट अगर आपको कंसेप्ट पता है, प्रूफ पता है कि फॉर्मूला कैसे आया, अच्छा भाई ये करना था वो करना था, एक्सक्यूज मी, तो life would be easier, like questions would be solved easily. So let's discuss about section formula. So what we'll do in the section formula, what happens is we get 2 points. Let's call 2 points as A, and I'll give its coordinate as A comma B, or let me give it as x1 comma y1. Okay, two coordinates. I'm sure all of you would be knowing what is coordinate, what is abscissa, what is ordinate. And then there is another point B somewhere far away, and let's call its coordinate as x2 comma y2. I'll join this A and B with a straight line because we can join 2 points by straight line. Straight बन गई ना, हाँ. Okay, now what happens is in section formula we'll study about that there are 2 points. Obviously we can join 2 points by a straight line. Then there is another point that lies on this AB. Let's call it C and give its coordinate as x comma y. Now C is doing what? C is dividing line segment AB in two parts. C is dividing AB in two parts. What are those two parts? AC and CB. Okay, AC and CB. So if there are two parts, let's say that this two parts, the ratio would be what? AC upon CB. Let's call this ratio as A comma B. No, let's say P comma Q. P by Q. Okay, so AC upon CB is equal to P upon Q. Let us suppose AC is like AC will have some length. Let's call this as suppose 12 centimeter, and this is CB. It will be like suppose say 7 centimeters. So what would be AC upon CB? AC upon CB would be 12 upon 7. 7. So let's give it a general expression that is P upon Q. Now I'll construct the coordinate plane so that you get a much more clear understanding. This is x-axis, this is y-axis. Okay. Now tell me, if I want to reach on
this is origin. If I want to reach A from O, how much will I have to walk in the x direction? x1, let's walk x1. We'll reach this point. Let's call this A dash. A dash is just below A. So if we join A and A dash I have joined. Okay, let me give this as x1 comma y1, and I have joined A and A dash. So OA dash is how much? X1 units. And AA dash is how much? Y1 units. Clear? Similarly, if I ask you, I have to reach from O to B. Let's start walking from O to B, and I move and move and move and move and move, and I reach just below B. Let's call this as B dash. And how much will I have to move? X2 units. Because from O to B, coordinates of B are x2. How did these coordinates, हम जो coordinates कैसे आए थे? Because O से B तक जाने के लिए पहले हम x axis पे चलेंगे कितना चलेंगे? x2 units. Let's mark this as x2. ठीक है? OB dash is x2. अच्छा, B dash से B तक जाना है. ये इसके एकदम जस्ट नीचे है, तो ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप कर दी. ठीक है, ये कितना हो जाएगा? दिस इज y2. ठीक. अच्छा, अब O से C भी देख लेते हैं. C भी बीच में पड़ा हुआ है, ऐसे क्यों छोड़ें? तो O से C तक जाने के लिए हम कितना चलेंगे? C डैश इसके जस्ट नीचे एक पॉइंट बनाया. कितना चलेंगे? X. ठीक. और C डैश से C जाने के लिए, C डैश से C जाने के लिए हम कितना चलेंगे? Y. क्लियर है? ये बात इतनी समझ में आती है? आसान है ना? कोऑर्डिनेट्स ऐसे ही लिखे ही जाते हैं. A के कोऑर्डिनेट x1 y1 क्यों है? क्योंकि O से A तक जाने के लिए पहले हम x एक्सिस पे x1 चलेंगे, फिर मुड़ेंगे और ऊपर y1 जाएंगे. C के कोऑर्डिनेट्स x, y क्यों है? क्योंकि O से C तक पहुंचने के लिए पहले हम O से C के जस्ट नीचे पहुंचेंगे. मान लो वो पॉइंट C डैश है, तो वो कितना चलना पड़ेगा? x, और ऊपर जाएंगे तो y. क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज हम एक और कंस्ट्रक्शन करेंगे. ये हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. ठीक है, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम D. ब्लैक से ही लिखता हूं ना, D. तो अब देखो, A डैश C डैश D क्या बन रहा है? एक रेक्टेंगल बन रहा है. ये 90 डिग्री. भाई, A डैश से D तक जाना है तो वही डिस्टेंस तो है ना जो A डैश से C डैश तक है. ये ग्राफ पे प्लॉट करके देखोगे इतना यही आएगा. तो ये x है, ये पूरा x है, सॉरी, ये पूरा x2 है. O से C, सॉरी, O से C डैश x है और O से A डैश x1 है. तो मुझे ये बताओ, ये वाला डिस्टेंस A डैश से C डैश कितना होगा? उतने पूरे में से, इतने पूरे में से इतना हट गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये तो x था, ये लिख देते हैं हम x माइनस x1. तो अगर A डैश C डैश x माइनस x1 है, तो ये जस्ट इसके ऊपर भी एकदम उतनी ही लेंथ की लाइन बनी है, x माइनस x1 हो गया. ठीक. ठीक है, क्लियर है ये? अच्छा, अब ये बताओ, A डैश से A हमने y1 लिखा है, तो C डैश से D, C डैश से D कितना होगा? वही y1. ये रेक्टेंगल बन रहा है ना, A डैश, A D C डैश और A डैश, तो ये y1 होगा. और C डैश से C कितना है? ये y है, ये हमने निकाल रखा है. C डैश से C y है, तो ये CD कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस y माइनस y1. क्लियर?
वाई माइनस वाई वन हो गया। ठीक, अब आ जाओ, एक और कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, अच्छा ए डी और सी वाई टू ये पैरेलल लाइंस बनेंगी, क्योंकि ये पैरेलल किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल है दोनों। तो अगर ए डी पैरेलल है एक्स एक्सिस के और सी ई भी पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो ए डी और सी भी आपस में पैरेलल होंगी। क्लियर है ये? अच्छा, अब ये डिस्टेंस निकालते हैं, सी ई निकालना होगा ना। तो देखो ओ से बी डैश तक जाने के लिए कितना चलना है, एक्स टू। और ओ से सी डैश जाने के लिए, ओ से सी डैश जाने के लिए चलना है एक्स। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स टू माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर? तो अब ये अगर एक्स टू माइनस एक्स है, तो जस्ट इसके ऊपर ये जो सी ई बन रहा है ये भी हो गया एक्स टू माइनस एक्स। क्लियर? हम्म, अब आ जाओ इधर, बीई कैलकुलेट करते हैं। बी डैश से, नहीं सॉरी, सी डैश से सी तक जाने के लिए हमें कितना चलना पड़ा था, वाई। ये डिस्टेंस कितना चले थे, वाई चले थे ऊपर, क्योंकि सी के कोऑर्डिनेट्स वाई हैं। बस ये ट्रिक है, मतलब मजा आता है ये करते जाओ, कहाँ पे कितना चलना है यही निकालना है इसमें। तो अगर सी सी डैश वाई है तो ई बी डैश भी वाई होगा, सामने के साइड्स हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच दो पैरेलल लाइंस है ना, सी डैश और ई और सी डैश और बी डैश, इनको ज्वाइन किया है आपने, एक बार इधर 90 डिग्री बनाया, एक बार इधर 90 डिग्री बनाया, ये भी वाई हो गया। अच्छा ये पूरा डिस्टेंस बी डैश से बी कितना है, वाई टू है। बी डैश से बी कितना है, वाई टू है, वाई टू ही तो चलना पड़ेगा ऊपर। तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस हो गया, ये हो गया वाई टू माइनस वाई। ठीक, अच्छा अब सिमिलैरिटी पढ़ी है, पढ़ी होगी, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स। चलो अगर नहीं पढ़ी है तो देख लेना, मेरी क्लास देख लेना, उस पर सिमिलैरिटी में भी है। सिमिलैरिटी में क्या होता है कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं जिनके दो एंगल्स बराबर है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रायंगल में अलग बना दूं, नहीं इसी में करते हैं। एक ट्रायंगल बन रहा है ए डी सी, इसे मैं ए डी सी, ये ठीक। और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है सी ई बी, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दिख रहा है सबको, ए डी सी, सी ई बी। AD is parallel to CE. AD is parallel to CE. Why? Because AD is parallel to x-axis. हमने बनाया ही इस तरह से था. And CE is also parallel to x-axis. Therefore, AD is parallel to CE. अब ये angles और ये angle, that is angle CAD. यहीं पे लिख देता हूँ. Angle CAD is equal to angle BCE. क्यों? Because these are corresponding angles. Because these are corresponding angles. ठीक है, तो एक दो एंगल हमने, एक एंगल ये बराबर हो गया. अच्छा एक ये एंगल बन रहा है, दैट इज एंगल सी डी ए, विच इज इक्वल टू एंगल बी ई सी. क्यों, 90 डिग्री है. तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए. अच्छा सिमिलर ट्रायंगल्स की ये प्रॉपर्टी होती है, जो इनके सिमिलर साइड्स का रेशियो होता है दैट इज इक्वल, विच मीन्स दैट, ये मान लो कुछ नाम दे दो इसको, एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, ये 90 और ये 90 बराबर हो गए, तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल भी बराबर ही होंगे, बिकॉज सम ऑफ अ एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180. तो अब देखो ये वाला एंगल और 90 डिग्री को ज्वाइन कौन कर रहा है, AD. तो लिखो AD. अब दूसरे ट्रायंगल में आ जाओ, ये वाला एंगल क्या था ना, तो ये लेंगे इसके करस्पॉन्डिंग या इक्वल ये अपॉन CE. ठीक, इज इक्वल टू CD 90 डिग्री और ये
जो जिस पे मैंने 2 निशान बनाए थे, सी डी। तो अब इधर भी वही लेना पड़ेगा, 90 जिस पे 2 निशान, अपॉन बी ई। ठीक। अब जो बच गई साइड वो लिख देते हैं, ए सी वन, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अपॉन सी बी। ठीक। ये सिमिलैरिटी समझ में आई? ये क्लियर कर दूं अब? नहीं, क्लियर नहीं करूंगा, फिर आगे कैसे कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। ए डी की वैल्यू क्या है बेटा? x माइनस एक्स वन। ठीक। और सीई की वैल्यू क्या है? x2 माइनस एक्स। दिस इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी। ए सी अपॉन सी बी कितना है? p अपॉन क्यू। थोड़ी सी मैथ्स लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स वन इज इक्वल टू पी एक्स टू माइनस पी एक्स। ठीक है, क्लियर? अब x फाइंड करना, ये कोऑर्डिनेट c का फाइंड करना, तब यू हैव टू फाइंड अ पॉइंट c which divides a line AB in the ratio p is to q। तो सब कुछ दिया होगा, जो नहीं दिया होगा वो फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पे करता हूँ मैं, क्यू एक्स पी एक्स को इधर ले आते हैं, क्यू एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स टू। यहाँ पे मैं रेशियो लिख दूँ, पी क्यू, पी एक्स टू प्लस क्यू एक्स वन। ठीक। यहाँ से x कॉमन ले लो, p प्लस क्यू पी एक्स टू प्लस क्यू एक्स वन। अब ये p प्लस क्यू उधर लेते जाओ, तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई, लिख लो, यहाँ पे लिख देता हूँ, पी एक्स टू प्लस क्यू एक्स वन अपॉन पी प्लस क्यू। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, p इंटू एक्स टू प्लस q इंटू एक्स वन अपॉन पी प्लस क्यू। मतलब इस वाले रेशियो जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है उसको हमने राइट हैंड साइड के x वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, फिर जो राइट हैंड साइड पे लिखा था रेशियो उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले x से मल्टीप्लाई किया और p प्लस क्यू से डिवाइड कर दिया, तो हमें इस पॉइंट C का x की वैल्यू मिल गई। अब y का निकालनी है, सिमिलर थिंग। अगेन लेट मी क्लियर दिस अ बिट। सी डी कितना है? y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई बीई कितना है? वाई टू माइनस वाई इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। सिमिलर मैथ्स लगाओगे, क्यू वाई माइनस क्यू वाई वन इज इक्वल टू पी वाई टू माइनस पी वाई। लिख देता हूँ, क्यू क्यू वाई माइनस क्यू वाई वन इज इक्वल टू पी वाई टू माइनस पी वाई। वाई को उधर ले आते हैं, क्यू वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई वन, पी क्यू था ना ये, क्यू वाई वन प्लस पी वाई टू, कॉमन ले लेना, इधर ले आना, ही हो जाएगा p प्लस क्यू। किसकी वैल्यू आ गई है? y के।
ठीक, क्लियर, समझिए प्रूफ कैसे आया। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा इसका, कुछ भी आता रहे हम कर लेंगे। फॉर्मूला भी और समझा देता हूँ, थोड़ा ट्रिक बता देता हूँ। अच्छा, इसमें एक एक्सटर्नली भी हो जाता है, कुछ नहीं होता एक्सटर्नली में, वेरी इजी, बस इसी के एक चेंज करना है, वो भी समझा देता हूँ मैं। ये समझ में आया? एक क्वेश्चन देखते हैं इसका, बहुत बेसिक सा, ये मैं रब कर देता हूँ प्रूफ ऑफ इसके। So the question is very basic question. Find a point which divides a line joining 5, 7 and 2, 4, 5, 7 and 2, 4 in the ratio 2:5 internally. मतलब you have to find a point, उस point की क्या खासियत है कि it is dividing a line joining these 2 points. So let's suppose these 2 points are this 5, 7, this is 2, 4. We have to find a point on this line which is dividing it internally, अंदर ही अंदर divide कर रहा है यहीं पे। अभी externally पे समझा दूंगा, internally अभी don't bother about this. So it is dividing it in the ratio 2:5. Very basic question. So let's call this point as x, y. So how do we write x? The value of x is equal to, we take this, we multiply it with, let's write this down, 3, 4, okay? So we'll multiply 2 with the other side x value, put a plus sign, 5, okay, let's do this, 6, 7. I'm just changing the value so that there is no confusion, okay? 5 into 6 upon 2 plus 5. So this is 6 plus 30. 6 plus 30, that is 36 upon 7. Okay, now how to find out y? Again do the same thing. Now y, we'll focus on y thing only. So 2 into 4, 2 into the y value of the other side plus 5 into the y value of other side, 5 into 7 upon 2 plus 5. So this is 8 plus 35 upon 7. That is 43 upon 7. Very easy, isn't it? Okay. तो अभी तक हमने क्या समझा बच्चों, कि सेक्शन फार्मूला का प्रूफ कैसे आता है, और ये प्रूफ तो समझ लिया। आप क्वेश्चन करने समय प्रूफ तो नहीं करना है ना, प्रूफ तो करेंगे नहीं, इतना टाइम तो होगा नहीं, बट वी नीड टू कीप दैट थिंग इन माइंड। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होता है। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, वेरी बेसिक क्वेश्चन। I'll just change the values and then I'll give you 3 minutes to solve it. Find a point which divides a line segment joining -1, 7 and 3, -4 in the ratio. Let's keep the ratios change. 7, 2 internally. 2 minutes for you. Solve it and then we will discuss it. So hopefully all of you have found it. You can even pause the video if you have not found it, and then you can
again start it and see the solution. So again we have 2 points, minus 1 comma 7 and 3 comma minus 4. Okay, and it is dividing it into 7 is to 2. So how do we find x? Let's call this as x comma y, the coordinates of this point, which is dividing this line in the ratio 7 is to 2. So how do we find x? X is equal to 7 into the x of the other side, दूसरा वाला x, plus 2 into the upon 7 plus 2, 21, minus 2, that is 19 by 9. And how do we find y? 7 into दूसरा side वाला y, 7 into minus 4 plus 2 into 7 upon 7 plus 2. ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हम सीख चुके हैं लेक्चर के स्टार्टिंग में. अगर नहीं सीखा है तो अब नहीं समझ में आया तो वापस से एक बार देख लेना, क्लियर हो जाएगा. दिस इज माइनस 28 प्लस 14 विच इज माइनस 14 अपॉन 9. किस किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा 19 अपॉन 9 और माइनस 14 अपॉन 9? Third quadrant, obviously. X is positive and y is negative, so this is third quadrant. Okay, so this is all for today, but in the next class we'll discuss about one more thing, that is section formula if a point is dividing externally. Very easy, nothing in that. बस इसी का एक वेरिएशन होगा, माइनस आ जाएगा, क्यों आएगा वो हम समझ लेंगे, मैथ्स अपना काम करेगी उसमें. और नेक्स्ट क्लास में we'll discuss questions on section formula, some good questions, no? मिड पॉइंट क्या होता है, ट्राई जंक्शन क्या होता है, या इस तरह के क्वेश्चंस है. वेरी इजी, सिंपल, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला. सो टिल देन please practice more and more questions. Try to perform this proof at least 3 times on your own. Similarity के concepts नहीं अगर नहीं आते हैं, so you can watch my lecture on similarities, or even you can see from your textbook. Very easy. Similarity is a very easy concept. And so till then, take care. Bye bye. And please stay fit. Bye bye. Take care.